السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ۔ اور میں ہوں اقرا ریاض۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے سے زمین لرز اٹھی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور اطراف میں زلزلے کے جھٹکے۔ لاہور، گجرات سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سوات، مالاکنڈ، نوشہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، چترال اور دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں بمبر، سمانی اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش ریجن افغانستان اور گہرائی 121 کلومیٹر تھی۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کے جھٹکے افغانستان، تاجکستان، ازبکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ حکومت پاکستان کا آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور نوٹیفیکیشن کے مطابق 254 روپے 63 فی لیٹر قیمت برقرار ہے۔ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 فی لیٹر برقرار رہی۔ قیمتیں 30 اپریل تک برقرار رکھی جائیں گی۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی 8 روپے 72 پیسے، ڈیزل پر لیوی 7 روپے 1 پیسے بڑھا دی۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کے بجائے بلوچستان پر لگایا جائے گا۔ رقم بلوچستان کی اہم شاہراہ N5 کو دورویا کرنے اور کچھی کینال کا فیز 2 مکمل کرنے پر خرچ کی جائے گی۔ اور پیسہ ہم بلوچستان کے عوام کی نظر کر رہے ہیں۔ بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سکر سے کراچی موٹر وے وفاق خود بنائے گا۔ بجلی پہلے ہی 7.5 روپے فی یونٹ سستی کر دی ہے۔ فائدہ عوام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم لیوی میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا ترقیاتی منصوبوں پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ نے پیٹرولیم ریویژن کی سفارش پر پیٹرولیم پروڈکٹس آرڈیننس 1961 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ ترمیم سے قومی محصولات میں اضافہ ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو صارفین تک منتقل کرنے کے بجائے اس رقم کو بلوچستان کی اہم شاہراہوں کو دورویا کرنے میں استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس رقم سے بلوچستان کا انفراسٹرکچر اپ گریڈ اور کچھی کینال کا فیز 2 مکمل کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے سسٹینیبل انویسٹمنٹ سکوک فریم ورک اور نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کے بل کی بھی منظوری دی۔ یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں تیل کی اور پیٹرول کی، اور وہ ہم پاکستان کے عوام کو ہم پاس آن نہیں کر رہے، تو ہم اس بچت کو ہم نظر کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے۔ یہ رقم جو ہے یہ N25 کے اوپر خرچ ہوگی، ایک بہترین معیاری ہوگا۔ یہ ہے تو یہ ہائی وے، لیکن موٹر وے کی کوالٹی کی یہ سڑک ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی خصوصی طور پر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کے عوام کے لیے N25 کی بحالی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی منظوری پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کے امکانات روشن۔ صارفین کو 51 ارب سے زائد کا ریلیف ملنے کا امکان۔ ڈسپوز نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی۔ نیپرا اتھارٹی 29 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ اس سے قبل ملک بھر کے صارفین کو دوسری سہ ماہی میں 56 ارب 38 کروڑ روپے کا ریلیف دیا گیا تھا۔ دوسری سہ ماہی کے ریلیف کی مد میں فی یونٹ بجلی 1 روپیہ 90 پیسے سستی کی گئی تھی۔ تیسری سہ ماہی کی مد میں فی یونٹ بجلی 1 روپیہ 72 پیسے فی یونٹ تک سستی ہو سکتی ہے۔ حکومتی درخواست منظور۔ نیپرا نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کے ٹیرف میں بڑی کمی کر دی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کی بنیادی ٹیرف میں 21.98 روپے فی یونٹ کی کمی کی گئی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کا بنیادی ٹیرف 45.55 روپے سے کم کر کے 23.57 روپے فی یونٹ مقرر کر دیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز پر 24.44 روپے کے کیپٹ مارجن ہٹائے جانے کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے۔ حکومتی درخواست کے مطابق مارجن کا تعین مارکیٹ پر چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا کرنے والوں کی آنکھیں پیروں تلے رون دی جائیں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سچے پاکستانی اور زبردست پروفیشنل انسان ہیں۔ جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ آرمی چیف کی زبان میں وہ ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان نے 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا تھا۔ سابق حکومت کی 5 غلطیوں کی وجہ سے
चंद साल बाद दहशतगर्दी दोबारा सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। तमाम यूनिवर्सिटियों में समुंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा मुख्तस किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोटा 15% होगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ग्रीन चैनल भी दोबारा फाल किया जाएगा। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। पंजाब में भी ऐसी ही अदालतें कायम करने का अमल जारी है। जो दहशत गर्दी फैलाई गई है उसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं हम सब जानते हैं, कौन उनकी फंडिंग कर रहा है। मगर आपके जहन में एक बात रहनी चाहिए, फा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल, हर एक की दिल की आवाज है। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी, आउटस्टैंडिंग थोरो प्रोफेशनल, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशत गर्दी से बरसरे पैकार हमारी बहादुर मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ एक इंतहाई मनफी और जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस मनफी मुहिम और इसे चलाने वालों के खिलाफ अपना कौमी किरदार अदा करें तो आप इसके लिए आगे बढ़ें। दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसी अजीम कुव्वत बन के उभरेगा जिसकी लिए अजीम कुर्बानियां दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, सवाल यह है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। जब तक इस मुल्क के गयूर आवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं आपकी फ़ौज हर मुश्किल से बआसानी नबर्द आजमा हो सकती है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुल्क की तरक्की में जो जो रुकावट बनेगा उसे हटा देंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, बैरून मुल्क जाने वाले ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। सिपा सलार का ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वालों पर तंज। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। सिपा सलार ने दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? शोहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल ना आने देंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम आज मिलकर ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी। फिच ने पाकिस्तान का मौशी आउटलुक भी मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। फिच के मुताबिक पाकिस्तान ने माली खजाने में कमी और इस्लाहात पर पेशरफ्त की है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मौसर अमल कर रहा है। मौशी पॉलिसियों से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं इस पेशरफ्त के बाद मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी आएगी, तिजारत रोज़गार के मौक़ों में इजाफा और सनती तरक्की भी होगी। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा भी मनफी से बढ़ाकर मुस्तहकम करार दे दिया। फिच की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अब बेहतर हो चुकी है और मुल्क का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद भी बेहतर हुआ, जबकि पाकिस्तान की फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई है। रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने माली खसारे में कमी और इस्लाहात पर पेशरफ्त की है। इस्लाहात IMF प्रोग्राम की कारकर्दगी और माली वसाइल की दस्तयाबी को सहारा देंगी। पाकिस्तान की मुअस्सर मुआशी पॉलिसियों से ज़खायर में बेहतरी मुतवक्के है। फिच का कहना है कि पाकिस्तान का मूडीज और S&P आउटलुक भी मुस्तहकम है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम के इशारे हैं। पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं और मुआशी इस्लाहात का तसलसल बरकरार रखना इंतहाई अहम है। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि बानी PTI ने किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। बानी PTI ने कहा मैंने किसी पर डील के लिए दबाव नहीं डाला। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, जब तक अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात नहीं होगी मिनरल बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। बानी ने पार्टी अहदेदारों को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से मना किया।
बानी पीटीआई से आज भी खानदान के किसी फर्द को मिलने नहीं दिया जा रहा। आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। आज भी खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। खान साहब ने मुझे आज 6 स्टेटमेंट से दी है। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट जिस पे इतनी बातें की जा रही है, जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। उस वक्त तक इसको हम पास नहीं करेंगे। दहशतगर्दी पे मुझे बड़ा अफसोस है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे हैं उससे केपीके बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। इसका सख्ती से मुमानियत होगी पार्टी के, और पार्टी में इनसाइड डिसिप्लिन होगी, लेकिन आउटसाइड कोई बंदा बात नहीं करेगा। अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर पीटीआई के वफ्द को दावत दी गई या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नया तनाज़ा पैदा हो गया है। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और चीफ व्हिप को बुलाया था। अपोजिशन की जो अरकान मौजूद थे उन्होंने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। उधर बैरिस्टर गौहर का कहना है कि स्पीकर की जानिब से कोई दावतनामा नहीं मिला और ना ही उनके स्टाफ ने कोई कॉल की। अयाज सादिक के साथ बहस बराए बहस में नहीं चाहता। अमरीकी वफ्द की पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें। पीटीआई की आला क़यादत को जानबूझकर दूर रखा गया या कायदीन ने खुद दावत नजरअंदाज की। फ्रीकैन की जानिब से मुतजाद दावे सामने आ गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का दावा है कि उन्होंने अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर को दावत दी। स्पीकर के मुताबिक आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को उन्होंने नहीं बुलाया। इन अरकान ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी चेयरमैन का जिक्र तक नहीं किया। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने भी बानी की मुश्किलात का जिम्मेदार पार्टी अरकान को करार दे दिया। बानी पीटीआई के लिए शायद आसानियां पैदा हो सकती थी या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। ना हुकूमत रुकावट है, ना कोई इदारा रुकावट है। वो अपने लिए मुश्किलात में बड़े खुद कफील हैं। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अयाज सादिक के दावे को दुरुस्त नहीं मानते। उनका कहना है कि उन्हें मुलाकात से लाइल्म रखा गया। 12 अप्रैल को अमरीकी अरकान कांग्रेस के एजाज में इशाइये के मौके पर पीटीआई की जानिब से आतिफ खान और डॉक्टर अमजद ने शिरकत की थी, जिस पर आला क़यादत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। गर्मी बढ़ते ही दो सूबों में पानी के तनाज़े ने सर उठा लिया। इस हवाले से पंजाब और सिंध में बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी तेज हो गई है। सिंध हुकूमत ने टीपी लिंक कैनाल खोलने पर शदीद एहतजाज किया है, जबकि इरसा को टीपी लिंक कैनाल बंद करने के लिए एहतजाजन खत भी लिख दिया है। सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की तरफ से कम पानी मिलने के मुतालिक इरसा को लिखा गया खत भी मुस्तरद किया। पंजाब हुकूमत ने सखर बैराज से राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी देने का दावा कर दिया। सूबों में पानी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत का टीपी लिंक कैनाल खोलने पर शदीद एहतजाज। पंजाब का कम पानी मिलने पर इरसा को लिखा गया खत भी मुस्तरद कर दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही सिंध और पंजाब में नहरी पानी के मामले पर इख्तलाफात बढ़ गए। सिंध हुकूमत ने इरसा को टीपी कैनाल बंद करने के लिए एहतजाजन खत लिख दिया। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने खत में कहा कि टीपी लिंक कैनाल खोलने की वजह से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी, इसलिए इरसा टीपी लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद करे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने पंजाब का इरसा को लिखा गया खत भी हकायक के बरखिलाफ करार दे दिया। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है कि सिंध को अप्रैल के 10 दिनों 62% कम पानी मिला। इसके मुकाबले में पंजाब की नहरों को 54% पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने कम पानी मिलने पर इरसा को खत लिखा, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा है, जिससे किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। उधर पंजाब हुकूमत ने पानी की तकसीम के सही आदाद शुमार हासिल करने के लिए टेलीमेटिक्स वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से डाटा इकट्ठा करने का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर आपाशी काजिम पीरज़ादा का कहना है कि सिस्टम की तनसीब से पता चलेगा कि कौन सा सूबा कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताया पीपल्स पार्टी ने तोसा पंचनद लिंक कैनाल फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि 50% पानी की किल्लत के बावजूद तोसा पंचनद कैनाल खोलना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे। 6 नए कैनाल सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीनों को सहरा में बदल देंगे। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर CCI का इजलास बुलाए। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजी अमरी का कहना है कि जब सिंध 62% पानी की किल्लत का शिकार है तो तोनसा पंचनद कैनाल को क्यों खोला गया है।
लिंक केनाल्स को मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं खोला जा सकता। उन्हें सिर्फ सैलाबी मौसम में खोलने की गुंजाइश है। जब सिस्टम में पानी ही नहीं बल्कि शदीद किल्लत का सामना है तो नई नहरें कैसे बन सकती हैं? मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म से कराची फंड्स के 1.25 अरब रुपए मांग लिए हैं और मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर लाहौर बहावलनगर मोटरवे को वफाक 450 अरब दे सकता है तो 100 अरब हमें भी मिल सकते हैं। 45 साल बाद हब डैम से नई लाइन डाली जा रही है। 14 अगस्त तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आवाम से पत्थरे लगाने वालों से ख़रीदारी ना करने की भी दरख्वास्त की है। साहिवाल मोटरवे के लिए 450 अरब फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, तो कराची शहर के लिए 100 अरब रुपए बहुत छोटा सा अमाउंट है। जो हमने अपने 100 अरब रुपए की डिमांड की हुई है, वो 100 अरब रुपए के ऊपर भी वो थोड़ी सी फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए कराची को ये डेवलपमेंट पैकेज दें। जाम सादिक पथारों से खुद शॉपिंग करते हैं, अपनी गाड़ी भी वहीं खड़ी करेंगे, मोटर बाइक भी वहीं खड़ी करेंगे। नतीजा ये होता है कि ट्रैफिक आपकी कम्प्लीटली चोक हो जाती है। कि हमें अपने उन मेजर्स को सस्टेन करने के लिए, हम तो वो ठेला उठा के ले जाएंगे, हमें उनको सस्टेन करने के लिए आपकी मदद ये चाहिए कि आप लोग उन ठेलों से ख़रीदारी ना करें, आप दुकानों से ख़रीदारी करें। पंजाब असम्बली ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खुसूसी रियायत फराहम करने और कज़ाफ़ी स्टेडियम की हदूद में 5 स्टार होटल की तामीर समेत 6 करारदादें मंजूर कर ली। अपोजिशन ने सीटों पर खड़े होकर खूब शोर शराबा किया। इजलास के दौरान ईरान में 8 मजदूरों के कत्ल पर फातिहा ख़्वानी की गई। फसीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 29 मिनट की ताखीर से स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। इजलास के आगाज पर MPA चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच और सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल और ईरान में 8 मजदूरों के कत्ल पर फातिहा ख्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के बारे में सवालात के जवाबात देते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन अदरान ने पंजाब में असातिज़ा की कमी का एतराफ़ किया और यकीन दहानी कराई कि सरकारी स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग असामियों के लिए 2 माह में 12,000 असातिज़ा की भर्तियाँ करेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज चांग एक बार फिर पंजाब असम्बली में DPO रहीम यार खान के खिलाफ फट पड़े और उनकी मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। इजलास में मंजूर करदा 6 करारदादों में ज़र मुबादला में इजाफे के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई, चक फैजाबाद तहसील दीपालपुर को अलग मौजा बनाने, कज़ाफ़ी स्टेडियम की हदूद में 5 स्टार होटल की तामीर शामिल थी। जबकि इसराइली मुजालिम के खिलाफ मजम्मती करारदाद में वफाक से अपील की गई कि इस मामले को OIC में उठाया जाए। तंबाकू नोशी पर टैक्सेस, अवामी इमारतों में रैम्प्स और रेलिंग्स लगाने और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सेस से मुतल्लिक करारदादें भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। ईवान में बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर दर्जा हरारत गर्म हुआ तो स्पीकर ने ऐलान किया कि इस मामले पर बहस के लिए एक मुकम्मल दिन वक्फ किया जाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। मंडी अहमदाबाद में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई, मगर किसानों और काश्तकारों को मायूसी का सामना है। हुकूमत की जानिब से रेट ना मिलने पर किसानों को परेशानी का सामना है। असलम वट्टू मज़ीद सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। तो गंदम की फसल पाकर तैयार हो चुकी है और जो पंजाब हुकूमत है उसका गंदम खरीदने का कोई इरादा नहीं है। जो महकमा था उसको ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है, महकमा फूड को ही। अब जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, जो ज़िमींदार हैं, उन्होंने खून पसीना एक करके, खून पसीने की कमाई लगा कर उन्होंने अपनी गंदम की फसल को तैयार किया था। लेकिन अब पंजाब हुकूमत की तरफ से साफ जवाब है। जो किसान हैं, काश्तकार हैं, जो इंतहाई परेशान है, उनका ये कहना था कि कहने की हद तक तो मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन जो हुकूमत होती है, इनकी जो पुलिसियाँ हैं, वो हमेशा ज़राअत मुखालफ रही हैं। किसानों को क्रैश करने और किसानों को मारने वाली पुलिसियाँ हैं। पंजाब हुकूमत फिल फॉर नोटिस ले और जो गंदम है उसको सरकारी सतह पर खरीदा जाए। किसानों का ये भी कहना था कि जो रेट इस वक्त चल रहा है गंदम का मार्केट में वो 2000 और 2200 तक है, जबकि महंगा डीजल, महंगी खादें खरीद कर हमने फसल को तैयार किया, तो हम किधर जाएं? अब फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन हम किधर लेकर जाएं? पंजाब हुकूमत को फिल फॉर नोटिस लेना चाहिए और अपनी पुलिस पर नजरसानी करनी चाहिए और किसानों से गंदम को खरीदना चाहिए। जी। सिंध के ज़िला टंडोलायार में नसीर केनाल पर कायम पुल खस्ता हाली का शिकार है। ज़ेर तामीर पुल कई साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। वजूहात क्या है, जानते हैं आसिफ रजा से। मौजूद शाहरा के ऊपर ये शाहरा थरपारकर को कराची और कराची को थरपारकर मिलाती है। इस शाहरा के ऊपर जगह जगह टूट फूट का शिकार है। अगर पुलों की बात की जाए तो पुल जो है वो गैर तामीर शुदा है। इस पुल की वजह से एक हादसा भी रोनुमा हुआ था चंद दिन पहले कि कराची के 4 दोस्त जो मीरपुर खास जा रहे थे, जो इस पुल की वजह से नहर में जा गिरे थे, जो मौके पर ही जा बाक हो चुके थे।
यहाँ से हजारों गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं, कोई भी और बड़ा साना हो सकता है। लोगों का कहना है कि इस पुल को 2019 में मुकम्मल होना था, मगर 2025 में भी इस पुल की तामीर ना हो सकी है। रोड जो है वो 50 फुट का है, अगर पुल की बात की जाए तो 15 फुट का है, और वो भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इस साने के बाद इंतजामिया ने मिट्टी तो डाल दी है, मगर पुल का काम अभी तक को चालू ना हो चुका है, और जबकि लोगों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस पुल का काम शुरू कर सके ताकि कीमती जानें जो हैं वो जाया होने से बचाई जा सके।